Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. So, my dear educators, as we have been preparing for our MEd exam, so in this video, we'll be talking about career and guidance programs for life skills. So, this question either can be asked as a short note or can be asked under long question as well. And if the question is being asked for 10 marks, then accordingly, you have to first talk about what are life skills, what are the core life skills, and then you can go ahead with the importance of life skills for career and guidance, and then you will be talking about different programs, right? So here, dear educators, let's discuss like evaluation and analysis of various career development and guidance programs can provide insights into their effectiveness, strength, and weakness. So here are some of the factors that can be considered while evaluating and analyzing career development and the guidance programs. So first of all, we'll be talking about program goals and objectives. Career development and the guidance programs should have clear goals and objectives that align with the needs of the target population. जो हम career programs, career development guidance के जो program organize करते हैं, वो एक particular अगर cluster के लिए वहां के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनकी नीड एनालिसिस करके टारगेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ही इन करियर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, राइट? तो ये चीजों को ध्यान में रखना होता है. नेक्स्ट इज द करिकुलम. द प्रोग्राम्स करिकुलम शुड बी एविडेंस बेस्ड, रेलेवेंट, एंगेजिंग फॉर द टारगेट पॉपुलेशन. इट शुड बी एविडेंस बेस्ड करिकुलम, राइट? ये नहीं कि कुछ भी उसमें डाल दिया कि मे बी hit and trial and error method. No, it should not be like that. Evidence based per data collect karke, and accordingly these the curriculum for the career guidance programs should be planned. And if I go ahead with program delivery, the program delivery should be appropriate for the target population with consideration given to the factors such as age, culture, literacy level. कि जो प्रोग्राम को डिलीवर किया जाएगा, राइट? पहले तो हमने क्या किया कि टारगेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स चूज किए, उनके अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स को देखते हुए एविडेंस बेस्ड करिकुलम डिजाइन किया, एंड देन प्रोग्राम की जो डिलीवरी है उनका एज ग्रुप देखते हुए, उनका कल्चर, उनके लिटरेसी लेवल को देखते हुए प्रोग्राम की डिलीवरी करनी चाहिए, ताकि हमें क्या स्कैफोल्डिंग करना है, किस तरीके की एग्जांपल्स देनी है. प्रोग्राम का लेंथ भी देखना होता है इसका इवैल्यूएशन करते हुए. द प्रोग्राम लेंथ शुड बी सफिशिएंट टू अचीव द प्रोग्राम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. We need to see whether we are able to meet the objectives or not. Now, the program facilitators should have necessary expertise, experience, training to deliver the program effectively. अगर trainers ही effective नहीं होंगे, trained नहीं होंगे, knowledgeable नहीं है, expertise नहीं है, the program will not be a great success. Now, participant engagement. पार्टिसिपेंट शुड बी एक्टिवली एंगेज्ड. पैसिव लिसनर्स नहीं होने चाहिए. ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हों एंड दे शुड हैव अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई व्हाटएवर दे आर लर्निंग. प्रोग्राम इवैल्यूएशन, like program should be regularly evaluated to measure its impact and identify areas of improvement. In my previous videos, I have talked about continuous इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, इम्प्रूवमेंट, काइजन की हमने बात की थी. तो ये जो भी प्रोग्राम की सक्सेस होती है वो उसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर कि कितने रेगुलरली हम उसको इवैल्यूएट और मॉनिटर करके उसकी बेटरमेंट के लिए और उसमें चेंजेस लेकर आते हैं. सो दैट इज फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम. तो नेक्स्ट इज प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो, राइट? ये नहीं है कि आज प्रोग्राम बनाया है और कल हमें बदलना पड़ जाए तो वो प्रोग्राम कहाँ पर रह गया. सो the program should have plans for ongoing funding and support to ensure its sustainability. Program अगर बनाया है तो कुछ टाइम के लिए वो वैलिड होना चाहिए और उसको ongoing चलाने के लिए, ताकि वो चलता रहे कुछ समय तक, प्रॉपर फंडिंग एंड सपोर्ट उसके लिए प्रोवाइड होनी चाहिए. Accessibility. The program should be accessible to all the members of the target population. ये नहीं है कि किसी के लिए वो है या किसी के लिए नहीं है. कोई CSWN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए वो नहीं है, या विद डिसेबिलिटीज नहीं है. इंक्लूजन का फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, सारे बैरियर्स को हटाते हुए कि सारे सबको उसका एक्सेस हो, जब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, राइट? सो आर्टिकल 29
ए में लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली द सेम शुड बी डन। एंड जो आर्टिकल के में लिखा भी है उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट आर्टिकल भी इसमें लिस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना चाहिए, द प्रोग्राम शुड हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द करियर डेवलपमेंट एंड सक्सेस ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आज जैसे कंपनीज आई आज आई, वो जब उसको रिप्लेस कराने जाते हैं, उसको ठीक कराने जाते हैं, तब तक कंपनी ही बंद हो जाती है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आई मीन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका जरूर होना चाहिए। In addition to these factors, it is essential to consider the specific content, approach of each career development and the guidance program when evaluating and analyzing them. इन basis पर हम career जो guidance program है उनको evaluate कर सकते हैं. For example, the programs that focus on entrepreneurship may have different strengths and weaknesses than those that focus on job readiness and career exploration. So हर एक career program के कुछ अलग फीचर्स होती हैं, कुछ अलग हाइलाइट्स होती हैं, कुछ अलग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन program to program. Overall, evaluating and analyzing career development in the guidance programs requires a comprehensive approach to consider various factors including program goals and objectives, curriculum, program delivery. ये जो भी हमने अभी पॉइंट्स पहले बात किया है, तो ये सारे वही वाले पॉइंट्स हैं। आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हमने ये बात किया कि प्रोग्राम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, करिकुलम कैसा हो, प्रोग्राम की डिलीवरी कैसी हो, पार्टिसिपेंट्स का एंगेजमेंट कैसा लेवल का होना चाहिए, इवेल्युएट करेंगे फॉर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, एक्सेसिबिलिटी मतलब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मतलब कुछ टाइम तक तो स्टेबल रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हम कुछ नई चेंजेस लाएंगे, पर ये नहीं है कि ये खुद ही बदल जाए समय के रहते। And by analyzing these factors, program planners and evaluators can identify areas of improvement and develop more effective programs that meet the needs of the target population. तो आज के इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो भी करियर से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को जो हम करियर एंड गाइडेंस प्रोग्राम्स फॉर लाइफ स्किल्स हैं, उनको हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, उसका इवेलुएशन एंड एनालिसिस, ये हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, विल बी शेयरिंग विद यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।